Once again, welcome back, all of you, dear students. So, the last video all of you have seen, and there I discuss about square root of a complex number. So, I am 1000% sure that all of you understood how to get the square root of a complex number. Correct? So, now I am moving to the next segment. Next topic in a complex number is solve the quadratic equation. Means in this what will happen, an equation which having imaginary roots, that roots we have to find. Let's say the equation is 8x square plus 2x plus 1 equals to 0. Fine. Now we have to get the solution of this quadratic equation. If you calculate the d here, which all of you know, b square minus 4ac, correct? So b square is 4 minus 4 into 8 into 1. So it looks like this is less than 0. Fine. So d less than 0, what you have written till 10th, no solution. But there, now we will know the solution. The roots are imaginary. Roots are imaginary. Correct? So now the roots of this equation will be imaginary. And now what I have written here, roots are imaginary. The meaning, you can, or what I can say, we can elaborately we can write like this way. Roots are complex conjugate to each other. See this, what I have written, I'm telling you what is the meaning of this. Roots are complex conjugate to each other. That means, suppose a one root of this equation came 1 plus I. So by default, the other root will be what? 1 minus I. Remember. So whenever roots are imaginary or d less than 0, so the roots are complex conjugate to each other. Always it will come in a pair. Always roots are imaginary and it will come into pair, and pair are which way? Conjugate to each other. Let's say any quadratic equation, if I'll get when d less than 0, one root is minus 1 plus I root 3. So what will be the other root? The other root will be minus 1 minus I root 3. Correct? Because conjugate, you know, I we replace to minus I. Conjugate of a complex number, if z is any complex number x plus iy. This I'll discuss later on also. So when we go for conjugate of a complex number, so it will come x minus iy. I is replaced to minus I. इसके बारे में थोड़ा डिटेल और हम आगे के सेगमेंट में करेंगे. ये नेक्स्ट टॉपिक में कॉन्जुगेट उन्होंने मेंशन किया है. नो प्रॉब्लम. तो अभी इसका मीनिंग समझे आप कि ये जो प्लस आई है तो माइनस आई में मिलेगा अपने को रूट, अब दूसरा रूट. ठीक है. तो चलिए मैं ये बातें जो अभी इतना मेंशन किया है यहाँ पे, जब आप सोल्यूशन करेंगे तो ये इतनी चीज़ों को लिखना जरूरी नहीं है. ये मैं कंसेप्ट पार्ट को एलॉबरेट किया है. आपको इक्वेशन निकालने के लिए डी भी निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सोल्यूशन की ओर चले जाते हैं. ठीक है. तो उसमें मैंने कुछ बात बोली कि रूट्स आर इमेजिनरी होगी, उसको मैंने एलॉबरेट किया कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टू ईच अदर होगा. अगर एक रूट 1 प्लस आई है तो दूसरा रूट 1 माइनस आई होगा. अल्फा ये है, अल्फा इज दिस, तो बीटा इज गोइंग टू बी 1 माइनस आई. इफ एक रूट अल्फा माइनस 1 प्लस आई रूट 3 है तो बीटा इज गोइंग टू बी माइनस 1 माइनस आई रूट 3. अभी हम देखेंगे ये सारे सोल्यूशन निकालते समय वी विल कम टू नो कि इनके दो रूट प्लस और माइनस में निकलते हैं. अगर एक रूट माइनस आया तो दूसरा प्लस आई भी आएगा. ठीक है. आई का पहला वाला साइन प्लस होगा और माइनस होगा. सो देयर नाउ वी विल मूव टू सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऑल्दो वी केम टू नो कि इसका डी क्या है, लेस देन 0 है, तो रूट्स इसके नेगेटिव होने वाले हैं. तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड लेता हूँ. एक्स माइनस बी, बी क्या है हमारा 4, तो माइनस बी क्या हो गया डियर? लुक एट दिस, बी हमारा, सॉरी बी इधर 2 है, सो दिस इज 2 डियर. बी इज 2, सो माइनस बी
plus minus root under b square which is 4 minus 4a, a is 8, c is 1, ठीक है, upon 2a that is 16, ठीक है. Now we'll simplify, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. -2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस 32 कितना हो जाएगा डियर? दिस इज -28 एंड अपॉन 16, ठीक है. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई की जाए. -2 √28 को आप क्या लिख सकते हो? -√28 है तो पहले √-1 के लिए तो आई आ गया एंड √28 के लिए क्या आ गया? 2 रूट टाइम्स ऑफ 7, 2 रूट टाइम्स ऑफ 7 बाई 16. अगर आप 2 लेके सिंप्लीफाई कर दें इसको कॉमन लेके तो -1 प्लस माइनस आई √7 अपॉन 8 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन अपने को क्या मिल जाएगा डियर? वेट, 8x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 का सोल्यूशन क्या आ गया? x इक्वल्स टू, लुक एट दिस, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई √7/8. फाइन. सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड कैसे स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि आपने अपने को स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर क्लियर है. √-28 इज नथिंग बट माइनस आई √7, करेक्ट. सो इसके रूट्स अगर मैं लिखूं तो x के सॉल्यूशंस को आप ऐसे लिख सकते हैं. पहला रूट हो गया -1 प्लस आई √7/8 एंड दूसरा रूट हो गया डियर -1 माइनस आई √7/8. So these are the solutions of the quadratic equation which I had taken. ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन ये आ गया डियर -1 प्लस आई √7/8. फाइन. सो विल गो सम मोर प्रॉब्लम्स, ठीक है. देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी हम देखते हैं स्क्वायर रूट, जहां पे हमारा d लेस देन 0 होगा एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. लुक एट दिस, वन मोर प्रॉब्लम आई एम टेकिंग. क्वेश्चन इट इज solve means find the value of x. Solve means find x. Equation is 2x square minus √3 times of x plus 1 equals to 0. Now we have to find the solution of this quadratic equation. So a is 2, b is -√3, c is 1. You want to check वेदर इसमें रूट इसके क्या होंगे तो चेक कर ले आप. d इक्वल्स टू b² -4a इंटू c. सो दिस इज नथिंग बट 3 - 8 विच इज -5 विच इज लेस देन 0. सो d लेस देन 0. सो व्हाट इट सेज, दिस टेल्स अस दैट रूट्स आर इमेजिनरी. रूट्स कैसे निकलेंगे हमारे? इमेजिनरी निकलेंगे और वो पेयर में होंगे, ठीक है, यानी कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टू ईच अदर, ठीक है. विल गो फॉर सोल्यूशन. नाउ फ्रॉम हियर वी विल यूज x इक्वल्स टू डायरेक्ट फॉर्मूला -b. फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं, -b प्लस माइनस √b² -4ac. ये फॉर्मूला आप 10th से करते आ रहे हो, अपॉन 2a. नाउ b इज माइनस ऑफ -√3 प्लस माइनस √b² -√3 का स्क्वायर क्या आया? 3 -4. a we have 2 and c we have 1 upon 2 times of a which is 2 into 2, 4. So finally we have x equals to √3 प्लस माइनस, इसके अंदर हमें क्या मिलेगा डियर? 3 - 8 which is -5 upon 4. This is nothing but √3 plus minus I, because √-1 is I and √5 will left as it is as. So this upon 4. So what are the roots? So x के roots क्या क्या आ गए? √3 प्लस एक बार ले लेंगे आप, प्लस I √5 by what?
अपॉन 4 एंड सेकेंड रूट आ गया हमारा √3 माइनस आई √5 बाई 4. ठीक है, दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कि √-1 हमारा आई था, इसलिए हमने नेगेटिव नंबर के भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लिए, जो अपने को यहां दिख रहा है. ठीक है ना. सो दैट इज व्हाट एडवांटेज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट iota. So the answer came √3 plus minus I into √5 upon 4. दो रूट्स भी आ गए अल्फा और बीटा, एंड दोनों देखिए आप, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी कहते हैं. ये प्लस आई दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस आई दिख रहा है. ठीक है, तो ये हमेशा इसी फॉर्म में होगा, वैल्यूज भी सेम होंगे, ओनली द चेंज साइन. प्लस आई है तो माइनस आई होगा, माइनस आई है तो दूसरा प्लस आई होगा. ठीक है. So this is what a solution of this quadratic equation. Now we'll move to some more problem. Look at this. अब हम एक दूसरा प्रॉब्लम ले रहे हैं, वो भी सॉल्व करना है अपने को. Solve means we have to find the value of x. So now I'm taking one question. Question is x square minus 3√2 plus 2i into x plus 6√2 into I equals to 0. Correct? This is our quadratic equation. This is quadratic in x. Now the question is, क्या इसका भी हमने डी चेक करना है? चेक कर लीजिए, पहले आप मेंशन कर लीजिए. What are the information of A, B, C? A we have 1. What about B? B we have 3 minus, basically minus 3√2 plus 2i. This is B. And what about C? C is 6√2i. Correct? A, B, C confirm. Now we'll go for D, which is nothing but b square minus 4ac. Discriminant who describes the nature of the roots is known as discriminant, D. So b square, that means minus of 3√2 plus 2i, correct, whole square, minus 4a, which is 1, and c is 6√2 into I. Find here. ये आप चेक करें नहीं करें, इट्स नॉट मैंडेटरी. नहीं भी चेक किया तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट एक्स पे भी आ सकते हो. मैं जस्ट एक मेथड बता रहा हूं कि कॉन्फिडेंट रहेंगे आप. नाउ इसके होल स्क्वायर को तोड़ो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया डियर 18a² प्लस b स्क्वायर विच इज 4i स्क्वायर प्लस 2ab 2 4 3 12 √2i माइनस इधर आ गया अपने को 24√2i. ठीक है. सो डियर दिस इज नथिंग बट 18 माइनस 4, ये हो गया 14. ठीक है, और ये आ गया माइनस 12√2i. बी स्क्वायर माइनस 4 इसी किया मैंने. हाँ, अभी आप देखो ध्यान से, इस इक्वेशन के अंदर आई पड़ी हुई है, तो जब आप क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट जब ढूंढते हैं तो ABC आपके रियल होते हैं, बट यहाँ पे B क्या दिख रहा है? इमेजिनरी दिख रहा है. तो यहाँ से आप ये कंफर्मेशन नहीं कर सकते हैं कि ये बड़ा है या छोटा है. दिस इज ग्रेटर लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0. करेक्ट. सो दैट इज वाई आई टोल्ड यू कि दिस इज नॉट नेसेसरी टू कैलकुलेट एवरी टाइम दैट D. फाइन. देखो आप इस सब में यू आर नॉट एबल टू डिटेक्ट कि भाई D लेस है और ग्रेटर है, बट क्वाड्रेटिक में जो ABC है वो रियल है ही नहीं. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल वेदर D इक्वल टू लेस और ग्रेटर. करेक्ट. सो वी आर नॉट सपोज टू चेक. व्हेन यू विल कंफर्म, व्हेन यू विल सी द ABC contains A or B or C contains the imaginary number. So no need to discuss this D part. Correct. Earlier I have discussed, because in that those sums, what was that? ABC कोई इमेजिनरी नहीं था. लुक एट दिस, A2 B minus √3 C1. तो हमने D के बारे में डिस्कस कर लिया.
करेक्ट. बट व्हेन ऑलरेडी क्वाड्रेटिक कंटेन्स द आई, करेक्ट, ये हमारा क्वाड्रेटिक आई खुद कंटेन कर रहा है, तो ये इमेजिनरी ही रूट्स प्रोड्यूस करेंगे ये, या हो सकता है, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स होगा. सो नो नीड टू डिस्कस डी नाउ, करेक्ट. सो इस तरह के इक्वेशन में आप थोड़े से केयरफुल रहेंगे, ठीक है. जब ABC हमारा इमेजिनरी दिख रहा है, ए तो रियल है, बी इमेजिनरी, या सी कोई एक इमेजिनरी दिखे, नो नीड टू डिस्कस दैट डी पार्ट, ठीक है. तो हम इसको निग्लेक्ट करते हैं और इसको डिस्कार्ड करते हैं, इस पूरे स्टेप को, ठीक है. सो व्हाट विल डू नाउ वी विल गो डायरेक्टली द सोल्यूशन पार्ट पे. तो x इक्वल्स टू, फॉर्मूला भी है हमारे पास, माइनस बी में ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस. सो दिस इज 3√2 प्लस 2i, ये माइनस b है, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, दैट इज 3√2 प्लस 2i का होल स्क्वायर होगा, माइनस 4, a क्या है हमारे डियर 1, एंड c क्या है 6√2i, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर होगा, अपॉन दिस इज 2a, 2 into 1 विच इज 2. क्लियर. तो हमने रादर ये डी के बारे में डिस्कस नहीं करना है. क्यों नहीं करना है, मैंने बोल दिया आपको कि ABC कोई एक अगर इमेजिनरी हो गए तो डू नॉट डिस्कस द डी पार्ट. डिस्क्रिमिनेंट के बारे में डिस्कस नहीं करें आप, इसके रूट्स आपको इमेजिनरी ही दिखेंगे, विल सी, ठीक है. नाउ लुक एट दिस, इस x को अब सिंप्लीफाई करते हैं. चले अब ऊपर देखिए, अब इस x को सिंप्लीफाई करने के लिए, हाँ, सो नाउ x इक्वल्स टू 3√2 प्लस 2i प्लस माइनस रूट ओवर, अब इसके अंदर हमने जस्ट होल स्क्वायर ब्रेक किया था, कर देते हैं यहाँ फिर से. दिस इज गोइंग टू बी इन 18 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab विच इज 12√2i, करेक्ट, 12√2i माइनस ये कितना आ गया था अपने को 24√2 इंटू i, अपॉन पूरे के अपॉन क्या है, दिस इज 2. नाउ 3√2 प्लस 2i प्लस माइनस, इस रूट के अंदर देखिए क्या हमें मिल रहा है, 18 माइनस 4 14 आ रहा है डियर, माइनस 4 1, आई स्क्वायर इज -1, सो दिस इज 14, और ये हो गया मेरा माइनस 12√2i, करेक्ट, अपॉन 2. यहां पहुंच गए हम. अब हमें स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पता है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस 14 माइनस 12√2i हम शॉर्टकट से कैलकुलेट कर लेंगे इमीजिएटली, करेक्ट. और वो वैल्यू कैलकुलेट होगी तो वैल्यू डाल के फिर हम प्लस माइनस करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्ट. तो अब मैं इस स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 12√2, ये आप रफ में भी करके आ सकते हैं, आई का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, ठीक है. फॉर्मूला पता है, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर 196, ए स्क्वायर, पहले एक छोटा भी बड़ा भी रूट स्क्वायर रूट जाता है, रुक जाइए इसको थोड़ा बराबर से लिखिए, ये स्क्वायर रूट पहले बड़ा लिखा गया अपने से, लुक एट दिस. तो प्लस माइनस पहले बड़ा वाला स्क्वायर रूट लेते हैं, फिर अंदर छोटे वाले स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे आप, तो ये 196 प्लस ये 12√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 288, ठीक है, प्लस एक्स आता है, एक्स क्या है 14, अपॉन इस रूट के अंदर 2 आ जाता है, ठीक है. ये स्क्वायर रूट पूरी है, फिर माइनस है बीच में, तो अपने को ये माइनस आई देना होता है, फिर से बड़ा स्क्वायर रूट लेंगे हम, फिर छोटा वाला स्क्वायर रूट, वैसे ही 196 प्लस 288 स्क्वायर रूट अपने जस्ट देखा है थोड़ी देर पहले, -14 अपॉन 2, ये पूरी ब्रैकेट क्लोज हो गई, ठीक है. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं डियर. सो प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंदर अपने पास कितना हो गया, अगर इस पूरे को ऐड किया जाए तो दैट इज गोइंग टू बी 288 196 484 का स्क्वायर रूट क्या होता है डियर 22, ठीक है.
दिस इज 22. सो 22 प्लस 14 36/2 18 आ गया ये. ठीक है, दिस केम 18 रूट 18 माइनस आई रूट ऑफ, इधर भी आ जाते हैं 22 माइनस 14 8 8/2 4. यहाँ कितना कितना हो गया 22 प्लस 14/2 तो 18 हो गई. और ये हो गया डेयर 22 माइनस 14 8 8/2 4 और 4 लिख दो और बाद में हम स्क्वायर रूट कर लेंगे. सो फाइनली दिस इज प्लस माइनस रूट 18 इज 3 रूट 2 लिख सकते हो और माइनस 2i. करेक्ट. सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ रूट अंडर 14 माइनस 12 रूट 2i. ये अपने को, ठीक है, स्क्वायर रूट का जो काम किया हमने, ये आप रफ में भी कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे इसको दिखा दिया कि आपके सामने हमने लाइव निकाला है स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. करेक्ट. आई डोंट थिंक कि देयर विल बी एनी प्रॉब्लम. फॉर्मूला आप अच्छे से कर लिए हैं. फर्स्ट वीडियो में हमने स्क्वायर रूट पे ही ज़्यादा पूरे प्रॉब्लम्स ही स्क्वायर रूट के लिए थे. ठीक है. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस स्क्वायर रूट वैल्यू इन आर दिस इक्वेशन 1. तो देखते हैं व्हाट विल हैपन. लुक एट दिस. थोड़ा और ऊपर ले जाता हूं मैं. ठीक है, अब आइए. सो नाउ वी हैव x इक्वल्स टू 3 रूट 2. दिस इज वेरी लेंथी समा. ये आपके 11 कॉलेज में 4 मार्क्स में आएगा, मैक्सिमम मार्क्स में ये प्रॉब्लम. 3 रूट 2 प्लस 2i प्लस माइनस. ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस और इधर भी प्लस माइनस आया है तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 रूट 2 माइनस 2i. गॉट इट. अपॉन दिस इज बाई 2. ठीक है. अब यहाँ एक बार आप प्लस ले लें और एक बार माइनस ले लें. देखते हैं क्या आता है सोल्यूशन. वंस यू टेक पॉजिटिव सो यू विल गेट 3 3 6 रूट 2 बाई 2 विच इज 3 रूट 2. एक रूट ये मिल रहा है अपने को 3 रूट 2 व्हेन यू हैव टेकन पॉजिटिव. और दूसरा जब आप इसके नेगेटिव को लेते हैं तो 3 रूट 2 गेट कैंसिल. 2i माइनस 2i माइनस 4i/2 विच इज माइनस 2i. ठीक है. सो केयरफुली देखें आपके इस रूट में हमारे पास जो आंसर आया तो ये क्या क्या मिल रहा है अपने को. एक 3 रूट 2 मिल रहा है और दूसरा 2i मिल रहा है. ठीक है. सो दीज आर द टू सॉल्यूशंस. अब आप यहाँ पे टेंशन में होंगे सर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ तो आपको d पता ही नहीं था ना, लेस देन 0 है या क्या है. अंडरस्टूड. इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में नहीं दिखा. ये -2 आया, एक रियल आया. ये रियल है और ये इमेजिनरी है. जब इमेजिनरी रूट्स कब होते हैं, जब d लेस देन 0. बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट नो नीड टू डिस्कस इन सच टाइप ऑफ अ क्वेश्चन d, क्योंकि यहाँ पता ही नहीं है d लेस है और ग्रेटर है, बिकॉज ऑल द क्वांटिटीज आर इमेजिनरी. अंडरस्टूड. सो one root came real, another root came imaginary. So these are two answers. So values of x are 3 root 2 and minus 2i. Now question comes कि सर मैं आंसर कैसे चेक करूंगा. तो बेटर है आप दोनों वैल्यूज डाल दें इक्वेशन में, चेक कर लीजिए. इफ यू हैव टाइम देन यू कैन, व्हाई नॉट, यू कैन डू इट. यू विल गेट द आंसर 0. दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ. आप अपने से करें and I am 100% sure you will get the correct answer. ठीक है. x की वैल्यू आप इस इक्वेशन में डालिए, देखिए सेटिस्फाई होता है या नहीं, 0 आता है या नहीं दोनों वैल्यू डालने पे. दैट आई बिलीव यू कैन डू इट. ठीक है डियर. सो ये जो आपके 11th कॉलेज में सबसे बड़े मार्क्स का क्वेश्चन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, बिकॉज इट कंटेन्स 2 सेगमेंट. एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्यूशन है और दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी अपीयर हो रहा है, which I have shown you here. ठीक है. So this way we can get the solution of such quadratic equation. I'm taking one more example so that you know you will be enough confident to solve such problems. Look at this. Now this time I am not going to discuss that d and all. Directly we will go for solution. Look at the problem. This is 2 plus I into x square minus 5 minus I
into x plus 2 into 1 minus I is equals to 0. We have to find the solution of this quadratic equation. So what is A? A here 2 plus I. What is B? This is minus 5 minus I. This is B. And what is your C? C is 2 times of 1 minus I. So now we will move directly the solution part. ठीक है, मैं solution part पे आ जाऊँ direct. So x equals to minus b. So minus of minus, so it become plus 5 minus I. ठीक है, minus b plus minus root over b square. तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो केवल मैं 5 माइनस आई का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ. बी स्क्वायर माइनस 4a इज 2 प्लस आई एंड c इज 2 माइनस 2i. ठीक है, 2 से इंटू कर दिया इनसाइड अपॉन 2a, 2 इंटू 2 प्लस आई. ठीक है, दिस इज योर 2a. सो हम इसको देखें थोड़ा सिंप्लीफाई करके, क्या हमारे पास पोजीशन है अभी 5 माइनस आई प्लस माइनस रूट के अंदर एंटर करते हैं. विल हैव सम मोर सिंप्लीफिकेशन हियर. स्क्वायर को तोड़ेंगे 25 प्लस आई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो 10i हो गया डियर. माइनस 4 टाइम्स ऑफ इसका इंटू देख लें हम कितना आएगा. 2 to 4 माइनस 4i. ठीक है, प्लस 2i एंड दिस इज minus 2i square. Correct? Inside and denominator we have 2 times of 2 plus i, और इसको आप 2 times of 2 plus i लिखते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. we have simplification left. So 5 minus I plus minus root over I square becomes minus 1. So ये 24 minus 10i माइनस इधर आते हैं इंटू करते हैं. ये माइनस 2i स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 6. 6 इंटू माइनस 4 माइनस 24. ये माइनस 4i प्लस 2i माइनस 2i एंड माइनस, तो ये हो गया डियर प्लस 8i. ठीक है, प्लस माइनस ध्यान में रख के सिंप्लीफाई करो आप. अपॉन दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस i. ठीक है, स्टिल वी हैव रूट इज स्टिल पेंडिंग, तो वो भी हमें कैलकुलेट करना है. तो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले. 5 माइनस आई प्लस माइनस रूट ओवर ये कितना हो गया डियर माइनस 24 एंड 24 गेट कैंसिल. चेक इट वंस अगेन. प्लस 2 6 24 एंड 24. ठीक है, अपने पास रह गया माइनस 2i. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2i एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव 2 प्लस आई. तो अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2i कैलकुलेट करना. ठीक है, यहाँ पे x क्या है डियर 0, y क्या है माइनस 2. तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें. प्लस माइनस रूट ओवर रूट एक्स स्क्वायर वो 0 है प्लस वाई स्क्वायर यानी 4 प्लस एक्स विच इज 0 बाई 2. माइनस पहले है 2i के पहले, तो यहाँ माइनस आएगा. फिर i लिखते हैं हम कंपलसरी. फिर स्क्वायर रूट लेते हैं. फिर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 4 ओनली, क्योंकि 0 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4. माइनस एक्स करते हैं विच इज 0 डिवाइड बाई 2 करते हैं और ये पूरे स्क्वायर रूट होती है और ब्रैकेट क्लोज. सो डियर हमारे पास जो इसका स्क्वायर रूट हुआ ये 2 प्लस 2 1, 1 का स्क्वायर रूट इज 1. यहाँ पे भी 2 में 2 गेट कैंसिल माइनस आई. सो 1 माइनस आई इज द स्क्वायर रूट. ठीक है, सो the time came now we will substitute here. So 5 minus I plus minus square root of minus 2i क्या मिल गया अपने को 1 minus I and denominator क्या है हमारा डियर 2 times of 2 plus I. ठीक है, so now we'll take first positive and then we'll take the negative value. प्लस और माइनस है, ओपन करेंगे एक एक करके. So first x is प्लस लेंगे आप तो 5 प्लस 1 6 एंड माइनस 2i. तो 6 माइनस 2i अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस i. ये पहला रूट हो गया.
or when you take negative, so this is going to be 4 minus I और ये plus I get cancel, 4 upon 2 times of 2 plus I. ठीक है, अब देखो इसमें भी आंसर वो नहीं रखा होगा, अभी फिर से मुझे ये 2 माइनस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा. ठीक है, सो दैट वो हमारे x प्लस आई वाई के फॉर्म में दिखे. करेक्ट, तो इसको फर्दर भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. करेक्ट, लुक एट दिस, फाइनली वी हैव x इक्वल्स टू, एक 2 कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये बच गया हमारे पास 3 माइनस आई अपॉन 2 प्लस आई. ठीक है, पहले इस रूट की बात कर ले. इसको मैं क्या करूं, 2 माइनस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं. 2 माइनस आई से 2 प्लस आई तो 2 माइनस आई, ये प्रोडक्ट क्या हो गया डियर, 6 माइनस 3 आई माइनस 2 आई एंड प्लस आई स्क्वायर, तो विच इज -1 अपॉन ये हो गया 5. तो यहाँ से मिल गया 5 अपॉन 5 विच इज 1 और -5i अपॉन 5 इज -i. सो डियर ये पहला रूट हो गया इस इक्वेशन का. जब हमने पॉजिटिव साइन लिया, सो वी हैव दिस इज अ रूट. ठीक है, नाउ व्हेन वी टेक दिस, ये वैल्यू जब लेंगे तब क्या होगी, तो इसको आप रैशनलाइज कर दो. पहले 2 से छोटा कर दिया आपने, तो ये 2 अपॉन 2 प्लस आई, 2 गेट कैंसिल, एक 2 से इस 2 को कैंसिल किया. फिर आपने क्या करना है, 2 माइनस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है. करेक्ट, ये हमारे पास क्या आ गया, 4 माइनस 2 आई, नीचे क्या आ गया डियर, 5. सो दिस इज आवर सेकेंड रूट. सो दीज 2 आर सॉल्यूशंस. ठीक है, ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फाइन. सो अब नाउ द क्वेश्चन कम्स ही सर, हाउ वी विल चेक, क्या कैसे चेक होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए. ठीक है, तो इसके आंसर के लिए डियर आप इसके वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड देन यू विल फाइंड द सॉल्यूशन. द आंसर्स आर 1 माइनस आई एंड 4 माइनस 2 आई अपॉन 5. दीज क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. इफ आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो आप ये एक्सरसाइज बता दूं मैं, टेक्स्ट बुक का ये एक्सरसाइज 1.2 है. एक्सरसाइज, वेट, दिस इज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2. उसके अंदर ये फोर्थ, इनफैक्ट सॉरी इट्स नॉट 2, इट्स क्वेश्चन नंबर 4 आई बिलीव, 4 इट इज. क्वेश्चन नंबर 4 का ये 4th क्वेश्चन है. तो आपके बुक में भी आंसर होगा, आप चेक कर ले आंसर. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, इन बुक के आंसर थोड़े इनकरेक्ट हैं, तो आप उसके लिए बेस्ट उपाय है कि आप आंसर को सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे. ठीक है, अगर सही आंसर है तो बल्ले बल्ले. करेक्ट, चलिए. सो यू हैव सीन इट्स अ 4 मार्क्स सम. कॉम्प्लेक्स के नंबर के अंदर ये सबसे बड़ा टाइप का क्वेश्चन होता है. एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को फिर से देख लें, क्या क्या करी गई. ABC कंफर्म किया, फॉर्मूला लगाया, रूट को सिंप्लीफाई किया. ठीक है, रूट सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास 5 माइनस ये पोर्शन आया, √2i माइनस √2i, रूट अंडर -2i. इसका हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया रफ में शॉर्टकट से, विच केम ±1 अपॉन i. देन वी सब्स्टिट्यूटेड, एक बार प्लस साइन लिया और दूसरी बार माइनस लिया, तो प्लस साइन पे ये वैल्यू आई. फिर उसको हमने a + ib फॉर्म में बनाया, जो यहाँ पे फाइनल आंसर मिला अपने को. ठीक है, और दूसरे रूट को भी a + ib बनाया. सो वी हैव गॉट 4 - 2i/5. सो फाइनली x इक्वल्स टू 1 - i एंड 4/5 minus 2i/5 is the solution. So ये हमारे रूट्स हो गए दिस पर्टिकुलर सम का. इस प्रॉब्लम का रूट अपने को वो मिल गया. ठीक है, सो आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम. थोड़ा लेंदी है डियर, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब नहीं आते हैं,
but you must to know how to calculate. Now you went to, all of you reached at that level, there you can solve when roots are imaginary. Roots are imaginary भी हैं, then also you are finding the roots of quadratic equation. And with this, to finding this, we require some complex number concept, values of I, square root of complex number, fine, and finally we got what? Solution of this quadratic equation. Check it, this answer आप check कर लेना बुक में भी. मुझे तो वहाँ दिख नहीं रहा है, पीछे बुक निकाल के देखना पड़ेगा. But all of you check. I am sure that this is the correct answer. Now, there with these sums, which is already I told you it's lengthy one. I took 2 questions. But what is my request? All of you try. Fine. जिनके पास बुक नहीं है, मैं उनके लिए कुछ सम्स इस पे लिख दे रहा हूँ जो आप ट्राई करेंगे. दिस इज लाइक होमवर्क, बिकॉज थोड़ा ये लेंदी टाइप के क्वेश्चन है. सो ऑल ऑफ यू ट्राई. इसमें सारे वेराइटीज में लिख दे रहा हूँ. फर्स्ट सॉल्व. ठीक है, सॉल्व करने हैं आपको. इक्वेशंस है हमारे पास डेयर. एक्स स्क्वायर पहला ले रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 इक्वल्स टू 0. ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड वन अगेन सॉल्व. एक्स स्क्वायर प्लस 5ix 5ix प्लस 14 equals to 0. Third question, all of you have to try these sums. X square plus 10ix minus 25 equal to 0. Question number 4. X square minus 4x plus 13 equals to 0. Fifth one, x square minus 5 plus I into x plus 8 plus I equals to 0. Finally, the sixth one, x square minus 2 root 3 plus 5 I into x plus 10 root 3 I is equal to 0. फाइन. मैं आपको इस 6 सम के आंसर्स भी जो है प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप पे. ठीक है, बट ये 6 सम्स आज के लिए होमवर्क है. आज के लेक्चर के बाद आप ये 6 सम्स और पुराने टॉपिक और स्क्वायर रूट की कुछ सम्स मैं होमवर्क में दूंगा व्हाट्सएप पे. ठीक है, सो दीज 6 प्रॉब्लम्स and including this plus problems on square root. ठीक है, स्क्वायर रूट के प्रॉब्लम मैं व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा. तो these 6 क्वेश्चन और स्क्वायर रूट के प्रॉब्ली एक समझ लो 6 to 7 क्वेश्चंस. सो टोटल प्रॉब्लम्स इट इज गोइंग टू बी 12 प्रॉब्लम्स जो है वो आज आपका होमवर्क होगा. ठीक है, understood? How many problems? 12 problems. 6 is this homework and 6 is problems based on square root. ठीक है, यहाँ से 6, ये 6 और ये 6 प्रॉब्लम. ठीक है, आई बिलीव आप जरूर करेंगे, अच्छे से समझ गए हैं. कुछ डाउट हो तो लेट मी नो इन व्हाट्सएप. करेक्ट कि सर दिस स्टेप और दिस पार्ट आई हैव नॉट अंडरस्टूड, सो दैट आई कैन रेक्टिफाई दोज स्टेप्स और आपको मैं समझा पाऊंगा वो स्टेप. आप वीडियो को अच्छे से देखिए, 2 बार देखिए. फाइन. एंड आई एम 100% श्योर दैट यू विल डू इट ऑल दीज प्रॉब्लम्स. होमवर्क के सारे प्रॉब्लम आप कर पाएंगे, स्क्वायर रूट और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन. सो आज के वीडियो के लिए, आज के सेशन को मैं इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ. ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ योर सेल्फ देयर एंड एन्जॉय लर्निंग मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स इज़ वेरी सिंपल. All of you can get a good score in maths there. Fine. So इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या इतनी देर में अगर लिखा है तो आप कॉपी कर लोगे.
ठीक है ना, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो और या तो इसको कॉपी कर लो, ठीक है। सो all of you have reached in complex number. 50% part of complex number we have finished. Still 50% is remaining, जहाँ पे अभी हमें कुछ कॉन्जुगेट मॉडुलस आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखने हैं, ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो अभी तक हमने केवल 50% किया है डियर कॉम्प्लेक्स नंबर में। मैंने 3 क्लासेस में तो आपको केवल आई के वैल्यूज के बारे में बताया, आई की वैल्यूज और x प्लस आई वाई कैसे फॉर्म करते हैं। स्टिल आई थिंक lot of students are not yet understood, but they are not asking questions. That is what a worried part. You ask their questions. When you ask questions, then you will understand. If any doubt in homework, you let me know. These sums I am not getting, so that I can provide you solution and go through those solutions. और solution को go through कीजिए। जब कभी भी कोई question का solution भेजी जाती है, उसके solutions को go through करिए, कैसे ये sum हुआ है, ठीक है। Fine, dear. So now I am concluding this today's session. Thank you very much.